की शाम में भी रोशनी हो बेहिसाब, जिंदगी की शाम में भी रोशनी हो बेहिसाब, हर ख्वाब हो पूरा, न रहे कोई हिसाब। उम्र तो बस एक संख्या है, उम्र तो बस एक संख्या है, रुकना क्यों मंजिल के पास, 60 के बाद भी मिले नए सफर का एहसास। Welcome back to your channel, friends. Aging gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey. As aging is not the end, but the start of living your dreams. Here we are redefining aging as a time to pursue the dreams, not just health advisories. Because life after 60 is for living, not just surviving. बढ़ती उम्र अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। या हम बढ़ती उम्र को सिर्फ स्वास्थ्य सलाहों के तक सीमित नहीं करते, बल्कि इसे अपने सपनों का पीछा करने का समय मानते हैं। क्योंकि 60 के बाद की जिंदगी जीने के लिए है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं। So today's topic is, friends, the role of gratitude in aging gracefully. Gratitude, it plays a crucial role in how people approach and experience the process of aging, especially for seniors and the retirees. It helps shift focus from what might be perceived as lost to what remains abundant and meaningful, leading to a more fulfilling and enriched life. So, some of the few points which I have just noted down, I would like to refer to them at times when I'm talking to you all. So, the first point is focusing on what you have, not what you lost. So, this part plays the important role in our mental ability or mental stability. So it is a common time, it is a common thing कि हम रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो छूट चुका, अब गया, अब क्या कर सकते हैं। हमें वो आदत है, इंसान की वो आदत है। तो फिजिकल एबिलिटीज हो सकते हैं, रोल्स इन द सोसाइटी हो सकता है। सो ग्रैटिट्यूड हेल्प्स द शिफ्ट the perspective from losses to the abundance abundance of experiences, memories and relationship that enrich the life. जो छूट चुका उसके हम क्यों सोच रहे हैं। ये हम क्या मुझसे बोलते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। वो शुरुआत ही यहां से करता है, क्या लूज हो गया, मेरे को नहीं मिला, उसको मिला, मेरी काबिलियत थी। अरे ठीक है, वो हो चुका, अभी जाने दो, उसे छोड़ दीजिए। See the experiences you have enriched yourself with, the knowledge you have gained over the years. Why cry on the things which you are lost about? उसको सोच के मिलेगा भी क्या? You will be losing your mental stability towards depression, towards deterioration, है ना? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, तो क्या अभी क्या कर सकते हो? So you have to move, focus on what you have, not what you don't have or what you are lost. So by focusing on the positives, you can appreciate the present rather than dwell on the past limitations. Because as it is said, you cannot forget the past, but you will remain a perfectly good present by thinking about future. रिलेट किससे करो, जो गुजर चुका, जो तुम्हें नहीं मिला, उसके बारे में सोचते रहोगे तो अगला वाला क्या होने वाला है, खत्म, है ना। So then this is important, friend, that you have to focus on what you have and not what you have lost. Second point, improve mental and emotional health. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी छोटी सी बात होती है जो दिल पे लग जाए। नहीं इतना भी नहीं सोचना है। That is what you have to be very sure about, that you should be emotionally fit, so also mentally fit. So the research shows that practicing gratitude can lead to lower levels of stress and anxiety, which can be particularly beneficial in later years. So if you practice gratitude, you will be able to overcome all such type of hurdles. So it helps you remove the negative feelings like loneliness, depression, by promoting a sense of कनेक्टेडनेस एंड वेलबींग। हम अगर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, हम एक दूसरे से बात करेंगे। I did tell you in my last video that you should be reorganizing your life to the present situation.
हम पिछले इसमें से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। जब तक वो छोड़ोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देन यू विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइजरीज। वो मैं जो हमेशा कहता हूं, जिसके लिए ये मैंने वजह ये सीरीज शुरू की। See, if you are climbing up the ladder, you have to leave the earlier step to go up. That is the basics of life. So हम कहाँ फंसे पड़े हैं जो हमने नहीं अचीव किया, जो हमको नहीं मिला। अब नहीं मिला, हो चुका वो। Let us not harp on the things because that is creating stress for you, which is not at all a good thing because you should be mentally fit. मैं तो कहता ही हूं, if you want to avoid the medical advisories, you have to be mentally fit first. Physical fitness जरूर करना चाहिए. I have said time and again that I'm not challenging any health advisories or that I'm not commenting on their utility or anything. I'm only saying too much of health advisories is affecting the health itself. Mentally we are not prepared. हम मेंटल प्रिपेयर क्या कर रहे हैं? अभी तो मेरी उम्र हो चुकी, मैं रिटायर हो चुका, तो अभी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। ये सदियों से चले आ रहे जो बोल रहे हैं वही हम आगे चला रहे। क्यों? सब बदल चुका है, अभी हमें अप्रोच भी बदलना है। So to improve the mental and emotional health, strengthening the social connections, this becomes one of the parts or basic part whereby you share your experiences. You have to strengthen your social connections. Remember, मैं फिर से एक बात कहूंगा कि there are too many of that groups on social media. Please do not be a part of a group whereby you are getting criticized or you are being belittled by many of the people. These things happen in groups. किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, आपकी सोच अच्छी लगती है, बुरी लगती है, whatever you have posted on that particular social media. And that is affecting your mental health because now you are wasting your time in either convincing the other people of what you are saying or correcting yourself, which may be wrong. अब मुझे बताइए, आपने एक सोच रखी है उस सोशल मीडिया पे, किसी ने टिप्पणी कर दी कि आप कितने कैसे, he is not even liking your post at all and he is personally criticizing you on a group. Now this becomes taken as an insult by any person. तो उसकी mental health क्या रहने वाली है? What he or she will be doing? They will be retorting immediately, reacting immediately. Where we are really to, our mental stress is now getting doubled up. हम सारा समय उसी को जॉब देने में पड़ गए जिसकी जरूरत नहीं है. So don't be the member of such groups where your self-respect is getting compromised. No. So you have to increase the social connections of the like-minded people. Or you have to be into those people where you appreciate their stance. जैसे मैंने कहा कि हमेशा आप देखो, सुबह चले जाओ किसी गार्डन में वॉक के लिए, तो यू सी मेनी ऑफ द ग्रुप्स, लाफिंग ग्रुप, योगा ग्रुप, शेयरिंग ग्रुप्स, they are having that exertion groups, all these things. If you are in line with their thought processes and their actions, you may join the group because there you are able to share your experiences. So you have to increase physical health and vitality. मतलब क्या है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे रिटायर हो गया आदमी, जैसे इंसान रिटायर हो जाता है, पहले घर वाले बोलते हैं अभी तुम कुछ मत करना, घर में बैठे रहो. अब ये अच्छा है या घातक है? तो मैंने कहा था ये घातक है. क्यों? अरे क्यों क्या? वो घर में बैठा है, यही तो प्रॉब्लम है. तो हेल्थ एडवाइजरीज हमें क्या बता रहे हैं? दैट यू शुड बी एक्टिव. और हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे थे अभी तो बाहर मत जाओ. एंड द रोल असाइंड इज, अभी तुम रिटायर हो चुके, अभी तुम्हारे पास क्या काम है? नाउ यू बिकम द केयर टेकर. पहले भी तो था, यही तो मैंने कल भी कहा. सो चेंज दिस इनटू द हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी. बी ऑन योर टोज. ज्यादातर क्या, मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे नीज से चालू होते हैं, पांव. मैंने कल भी कहा, कल के वीडियो में ही मैंने कहा है कि किसी एक, मेरे पास एक ये आ गया सम वीडियो
जहां पे ये बोला गया कि इफ यू वॉक एट दिस स्पीड at the age of 60 then you will live more by 32 years or 30 years. That was, they were so specific. और मैं सोच रहा था कि ये अब भी रियलाइज हो रहा, नो, पहले होना चाहिए था. एवरी मेडिकल एडवाइजरी और हेल्थ एडवाइजरी इज लाइक पॉइंटिंग यू टुवर्ड्स बीइंग फिजिकली फिट. और फिजिकली फिट करने का सबसे आसान तरीका वो बताते हैं, पहले चलने चले जाओ, यू गो फॉर अ वॉक, सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ. बाकी आपको चलने की जरूरत नहीं. अरे क्यों चलने की जरूरत नहीं? चलने की बहुत जरूरत है. चलो, एट स्ट्रेच मत करना, थोड़ा थोड़ा चलो. यू कैन वेट ऑन द रोड. मतलब अगर रास्ते पे चल रहे हो तो आप बाजू में खड़े रहो 2 मिनट के लिए, फिर से चालू करो. टेक अ स्मॉल वाटर बॉटल विथ यू. हमें ही रास्ते ढूंढने हैं. बट डोंट सिट आइडल एट होम, बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट. घर वालों को भी बता देना, बाबा रिटायर हो चुका मतलब घर में बैठूंगा नहीं, मुझे मेरा काम करने दो. आई शुड बी बिजी, आई शुड बी एंगेज्ड, आई वांट टू लिव, नॉट सर्वाइव. लेट इट बी वेरी क्लियर. नाउ इफ व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, यू आर मूविंग टुवर्ड्स हेल्थ, वाइटैलिटी. जब स्फूर्ति रहेगी तो चेहरे में भी दिखेगी, बातों करने में भी दिखेगी, एक्शंस में भी दिखेगी, सोच में भी दिखेगी. आएगा, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड फ्रेंड्स. सो हेंस वी स्टार्टेड दैट वी शुड बी मेंटली फिट. इसीलिए मैंने कहा, जब घर वाले बोलते हैं कि अभी घर में बैठा रहो, कुछ मत करो, अरे नहीं नहीं, उनको बोलना कुछ मत करो, नहीं, आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी बिजी विथ माई ओन थिंग्स, बहुत काम है. क्यों? देन यू हैव टू बी ब्लंट इनफ टू टेल. पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करने में गुजार दी, मेरे सपने अधूरे छूट गए, अब मैं वो पूरे करना चाहता हूं. दैट इज व्हाट यू हैव टू बी टोल्ड. यू हैव टू टेल. देन ओनली इट विल स्टार्ट पंपिंग अप योर ब्लड कि करना है. सपने हैं, पूरे करने ही पड़ेंगे ना, छोड़ूंगा थोड़ी. दैट्स द वे यू हैव टू सी. एंड यू हैव टू. वी आर नॉट हर्टिंग एनीवन, वी आर नॉट हर्टिंग एनीबॉडीज फीलिंग्स. We are just telling them that we want to live, not to survive. केयर टेकिंग का हम करते हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन हमें अभी जीना है, सिर्फ जिंदा नहीं रहना है. So you should increase your physical health and vitality. So you have to live in the present moment. Natural है, मैं पास्ट में क्यों जीऊंगा? इसलिए मैंने अभी कहा, you cannot forget the past. You will ruin the perfectly good present by thinking about future. यही करते ना हम लोग. अब एक कुर्सी में बैठोगे तो क्या करोगे? मैं ऐसा था, मैंने ये किया था, वही था. अरे आज में जी, वो था, हो गया, खत्म. Yesterday I did tell you an example. इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे थे, दैट वाज अ मियर ट्रांजैक्शन. इंस्टीट्यूशन के लिए जब काम कर रहे थे, पूरी जी जान से काम कर दिया. ओके, इंस्टीट्यूशन गिव बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ अदर इमोलमेंट्स. सेड बाय बाय, अभी जाओ. कुर्सी खाली है क्या? नहीं, somebody else has already occupied your chair. इंस्टीट्यूशन रुकी नहीं है फ्रेंड्स, आपको भी रुकना नहीं है. That was a transaction which has been cleared off. Now the other thing. So live in the present situation, accept it, and move on. This will help you to be mental and physically fit. And it is a necessity, friends. Believe me, it is a necessity. हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे वेल विशर्स को हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो सोच है, अब तुम्हारे पास क्या काम है, तुम रिटायर हो चुके हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, ये बोलना भी नहीं है. बिकॉज दीज वर्ड्स ऑलरेडी दे आर हर्टिंग माई ईगो. बोलते हैं, ईगो नहीं बोल सकता, माई सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो या माई कॉन्शियस बोलो. मेकिंग मी रियलाइज अभी मैं किसी काम का नहीं. और क्यों काम का नहीं? नो, थोड़ा सा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये जो पुरातन काल से चले आ रहे सिस्टम्स है, उसे हम अचानक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. कोशिश नहीं, करेंगे. सीधी बात है. आई हैव टू लिव, नॉट सर्वाइव. सो यू हैव टू बी समवेयर, यू हैव टू टेल, एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशन
and move on. So gratitude is a tool for finding the purpose. So it helps to reflect on their journey with pride and satisfaction, reinforcing a sense of purpose. कुछ चीजें मुझे मैंने लिख के रखे तो पढ़ना पड़ेगा. So I'm just reading out the thing. But clear है. So once you are happy with your situation, gratitude is the tool for finding the purpose. So by reorganizing or recognizing the contributions you have made to the family, society, or career, you can feel a sense of accomplishment. ये आप में आना चाहिए ना. मैंने तो अभी कहा, हम पहले से, रादर मैं पहले वीडियो से कह रहा हूं, जिंदगी की शुरुआत जब से की थी, मतलब जब भी मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, या मैंने अपना काम कर चालू किया, या मैंने अपना बिजनेस चालू किया, या मैंने नौकरी चालू की, वॉट एवर फॉर्म, तब से लेके रिटायरमेंट तक, 60 साल की उम्र तक मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाई. केयर टेकर ही था मैं. पहले फैमिली के लिए किया, फादर मदर के लिए किया, भाई बहनों के लिए किया, फिर वाइफ हस्बैंड के लिए किया, फिर बच्चों के लिए किया, फिर उनके सपने पूरे करने के लिए किया, फिर उनको स्टेबिलाइजेशन करने के लिए किया, फिर उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए किया. सब तो किया, लेकिन इन सारे सालों में मैं अपने सपने जो चाहता था वो कहां गए? अरे वो तो अधूरे छूटते गए. मैं तो वो रेस में कब मैं चल पड़ा मुझे भी पता नहीं चला. बराबर ना? यस. सो नाउ यू हैव टू श्रेड दैट ऑफ. नहीं, अभी नहीं. अभी आई विल बी द गाइडिंग पर्सन, नॉट द केयर टेकर. केयर टेकर तो मैं हूं ही, रहूंगा ही. जब तक जिंदा हूं रहूंगा. जहां जरूरत पड़े इंटरवीन करूंगा. दैट इज द वे वी हैव टू अप्रोच. बिकॉज इट इज वी हु हैव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. अपना खुद के अपना जो फैमिली, अपने जो भी रूटीन्स आपने डाले हुए हैं, जो भी आपके फैमिली के रिचुअल्स आपने फॉलो किए हुए हैं, दीज आर इम्बाइब्ड एंड देन कैरिड फॉरवर्ड, है ना. तो आपने अपनी जिम्मेदारी की, आपने अपने बच्चों को जिम्मेदार बना दिया, वाइफ की जिम्मेदार बना, हस्बैंड को जिम्मेदार बनाया, पेरेंट्स के लिए सब कर दिया. अब जिम्मेदारी बोलो उनको, अभी जिम्मेदारी निभाओ. उसमें प्रॉब्लम आने लग जाए तो मेरे से हेल्प मांगो. आई विल बी एडवाइज ओनली व्हेन आस्क्ड फॉर. नॉट जस्ट बिकॉज मैं अभी क्या, मैं कुर्सी में बैठा हूं तो मैं हर चीज में अपना वैल्यू मतलब अपना इनपुट्स दे रहा हूं. कोई जरूरत नहीं है. लेट देम डू. They will also appreciate that. But at times you have to be blunt enough to tell. You have to create a boundary for yourself. बाबा मेरी स्पेस है, उसमें मत आना जब तक मैं ना बोलूं. Yes, it happens, friends. थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि नहीं, ये सोच एकदम चेंज होने वाली है. But you will enjoy that. So gratitude as a legacy to share. So you can pass on the value of gratitude to your younger generations. Natural है. वही मैंने अभी कहा. That you should pass on whatever you have learned to your family members. तो in a way आप उनका अपनी जिम्मेदार बना रहे हो. वो ऐसे थोड़ी होता है कि क्लास में बैठे हो, ये जिम्मेदारी है चलो. ऐसे नहीं होता ना. These are the experiences which you have to, which they get carried over the number of years. और कई बार तो हम भी कहते हैं, ये नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे माँ बाप करते थे इसलिए मैं भी करता हूं, है ना. कई रिचुअल्स ऐसे हैं. Nowadays people are, children ask the questions why. Earlier नहीं पूछते थे. बाबा माँ ने बोला करना है तो करना है ना. So you have to cultivate a positive attitude towards aging. Acceptance is the first step. And then the first and foremost act is that we have to be mentally accepting that we have to live, not survive. And that has to be told bluntly to everybody.
ताकि आपको कोई ये ना बताए कि अरे आप रिटायर हो चुके हो, रिटायर हो चुके हो, रिटायर, अरे यार रिटायर हो चुके, ठीक है, नहीं करते ना। हमारे देश में 58 और 60 इज द मैक्सिमम एज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। कई देशों में तो 65 है। लोग काम करते हैं ना। बट देन you have to be preparing your mental acceptance towards aging. So don't get succumb to the health advisories. Rather be prepared mentally to the aging part. ये मतलब मैंने कल भी कहा, मैं अपनी इस सारे वीडियोस में कहता हूं, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अ पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ 20 और 25, मतलब यंग जनरेशन। वो तो स्पीड से भाग सकता है, चल जाएगा, वो चलती गाड़ी में भी कूदी मारते हैं आजकल लोग। वो तुम मत करना। वो तो तुमको अलाउड नहीं है, करना भी नहीं। सो दैट इज व्हाट आई से, एक्सेप्ट कि ठीक है, पहले जब थे हम करते थे, नहीं अभी नहीं करना है, अभी यू हैव टू वेट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द एजिंग पार्ट। ग्रोथ cannot be related to aging. That has got nothing to do with your age. So develop yourself, develop good habits, develop your passions, run towards your dream which you left out. करना चाहिए. So whenever you are grateful towards your experiences, wisdom and lessons learned, embrace aging as a natural process or rewarding step of life. अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमने क्या छूटा वो नहीं देखना है, हमने क्या पाया, हमने कैसे किया, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। छूटे सपने वो पूरे करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पैशंस है, दैट विल कीप अस एंगेज, दैट विल मेक अस लिव देन सर्वाइव। सो दिस विल हेल्प इन अ वे टू कॉम्बैट द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। अब इमेजिन करो, सुबह उठ के कोई आपको बोलता है अभी तो आप रिटायर हो चुके, जाके नीचे जाके दूध लेके आए, अरे यार ये पहली वाली टैगलाइन क्यों बोल रहे हो, तो हर्ट होता है ना। देन यू फील आइसोलेटेड, you are just in the very first dialogue you are secluded from the family. Why? So you have to be very ruthless and tell them, उसी वक्त मत बोलना, झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा, बाबा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कल मैराथन दौड़ने जाऊंगा 25 साल के लड़के के साथ, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन मैराथन है फॉर एज पर्सन्स ऑल्सो, इफ यू विश यू कैन ज्वाइन, कर सकते हैं। दैट इज द स्पिरिट दैट यू शुड हैव। पर्सनल रिफ्लेक्शंस में आपने जितने भी अचीवमेंट किए, सेलिब्रेट देम, लेट देम बी परकोलेटेड टू योर फैमिली मेंबर्स। So you have to appreciate the milestones which you have achieved. It enhances the ability to reflect on the journey, knowing that your contribution experiences have left lasting impact. अच्छा लगता है ना, कोई जब आपको बोलता है कि अरे आपने ऐसा ऐसा किया था, बढ़िया काम किया था, people do remember. There are people who always give the feedback also. बस आपका अपने काम का पूरा रिफ्लेक्शन में आपको मिल गया। So this will cause positive and meaningful legacy that continues to resonate even after the process has been completed. मतलब जब मैं नौकरी में कर रहा था तब का प्रोसेस अभी भी मेरे को अगर रिफ्लेक्शन में देखूं, और या अभी भी लोग अगर फीडबैक दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड दैट इज व्हाट हैज टू बी परकोलेटेड आल्सो। That is what you are. So friends, इसीलिए मैं कहता हूं, जिंदगी की शाम में भी रोशनी हो बेहिसाब, हर ख्वाब हो पूरा, न रहे कोई हिसाब। उम्र तो बस एक संख्या है, रुकना क्यों है मंजिल के पास, 60 के बाद भी मिले नए सफर का एहसास।
We meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey. As aging is not the end, but the time to start living for your dreams. Because life after 60 is for living, not just surviving. So we meet again. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.